Everyone. I like. All right. Hello, everyone. Hello, everyone. I hope you all are doing great. Welcome to the session. We'll wait for few more people to join in, and I'll start the most awaiting and the most exciting session, which is the 2 year journey of my IIM life. So yeah, we have Mayur Patil who have joined. Then we have Ayush Raj Singh who is saying good evening, ma'am. Good evening, Ayush. All right. We'll wait for 1 or 2 minutes and then I'll start the session. So I'm personally very, very, very excited for this session. And even when I was preparing this entire PPT to show you all how life is inside IIM, I went through all the memory lane and it was actually very, very emotional and exciting at the same point. And I am very, very excited to share the entire journey with you all. And I'm sure you are going to make the most of the journey that I've made. You're gonna learn a lot from the mistakes and the good things that I've done in the 2 years of my IIM journey, and you're gonna enjoy that. So yeah, let's wait for maybe 1 more minute and we'll start the session. Okay, so if you guys have your friends or so and they want to know how life is inside IIM, I guess this is the perfect session. Yeah, so you can ask them to join as well and share the link of the session with them. By the way, also I wanted to tell you all that there's a batch which started today in Unacademy on 16th of March, the Bullseye batch, and I am mentoring the entire batch, wherein I'm having 10 sessions, and in all those 10 sessions I'm covering everything, starting with what is MBA, what are the exams, entrance exam for MBA, then coming to how you can kickstart your MBA preparation of 2023, followed by what are the things that I did and how I got a seat in IIM Rohtak and what all calls I got. Then I am going to take master classes on all the three subjects, VARC, Quants, DILR, followed by the last mile, mock strategies, and whatnot. So basically, it's a power pack of everything that a CAT aspirant should know before he or she should start their CAT preparation. And if you are someone who is planning to start their MBA journey, I guess that's the best batch to join in. And if you're really looking forward to join in, I would highly recommend you all to make the most of the discount that is available to you if you use my coupon code ANP22. Yes, ma'am, very excited for the session. In fact, Ayush, I am very, very excited. Hi, Devansh. Hello. Yeah. All right. I guess enough people have joined us, and yeah, let's begin. For those who know me and for those who don't know me, my name is Ankusha Patil and I am a student at IIM Rohtak. Well, I will be graduating very soon. I have my convocation in the first week of April. Hi, Vanshika. I guess she was there in my plus class today. So, yes. And I'm also a YouTuber. I started my YouTube journey in the second year of my MBA. And yeah, we're gonna go through all of it one by one. Let's begin. ओके जी। तो स्टार्टिंग विथ डेफिनेटली हम कोई छोटी सी भी प्रेपरेशन करते हैं या छोटी सी भी पीपीटी बनाते हैं तो एक चीज़ हम करते हैं दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस सेशन इज द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ इट फेल्ट स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ एन आईआईएम। ठीक है। सेकेंडली आई बी टॉकिंग अबाउट द कमिटी सिलेक्शंस, क्या प्रोसेस होती है, कितनी कमिटीज होती है, कितने क्लब्स होते हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है एंड हाउ यू गो अबाउट इट. Then we'll be talking about SIP preparation, followed by all the celebration that I had in the first year of my MBA. And also, I would like to tell you, I'm the COVID batch, or I would say moderately COVID batch, because मेरे 6 महीने जो थे वो ऑनलाइन थे और बाकी का जो टाइम था दैट वाज ऑफलाइन.
एंड उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट टू. उसके बाद फिफ्थ वी गोना बी टॉकिंग अबाउट माई यूट्यूब जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी. देन सिक्स्थ वी गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड फॉर माई फाइनल प्रेपरेशन, फाइनल प्लेसमेंट preparation. Then we'll talk about how my you know how my self growth, how I what should I say was the right word, how my life transitioned after my summer, after my final placement was done. At that point in time, I was free, and I had a lot of things to explore, and that is when a U-turn came in my life, I must say, of at least IIM. And then followed by that, how freelancing, then LinkedIn helped me a lot in self growth, and how I now can say that, I am a lot ahead of my peers in my college, and I was even when I was, studying with them. Then again, we had a lot of celebration in the second year, and lastly, we recently had our farewell, and now I'm at my home and I'm waiting for my convocation. So yeah, that's it. We have a lot of people commenting. So yeah, I'm your subscriber. Thank you very much for subscribing. Hello Mahesh. Hi Dynamite. What's your placement package? All right. So at this point in time, Dynamite, I am not allowed to disclose my placement package and the name of the company. But once I'll be allowed to do that, I will be more than happy to disclose my package and the name of the company that I'm placed in. So yeah, without wasting much time, that is all that we have on our plate for today's session. I cannot disclose Mahesh at this point in time. I'm not allowed to. Please try and understand. All right. I know you guys are desperate about it. You have been commenting, texting me on my LinkedIn, Instagram, but I'm not allowed to do that. All right. So the first slide that comes is stepping into a new world. देखो, अगर आप कैट एस्पिरेंट हो, एंड आई एम श्योर यू आर बिकॉज यू जॉइन दिस सेशन, तो जब आप सोचते हो ना एक IIM के बारे में, तो आई एम श्योर आपके कुछ ना कुछ सपने होंगे कि IIM ऐसा होता है, वहाँ कैंपस लाइफ इतनी अच्छी है, वहाँ इस तरीके से आप यू हैव प्योर लर्निंग, आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है, एंड वॉट नॉट, यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, राइट? Yeah, so there are people asking me a card person. I'm not allowed to talk about that as well. Then until I don't get my degree, I'm not allowed to disclose any of it according to the rules and regulation of my college. So I'm really sorry for that. Then there's one asking rank of IIM for marketing. Rank of IIM as in IIM Rohtak ka rank in NIRF ranking is 16th, and it is really good in marketing. Especially IIM Rohtak is very good in marketing and operations. All right, so I was talking about the dreams that one has when you step into a new world. So even I had those dreams. And yeah, the first day was the orientation day. And yahan on the screen you can see, there's Smriti Irani jo hame guest lecture dene aayi thi. Then we had the CM of Haryana, and a lot of good people, personalities who addressed us. And it was a very exciting day. Completely, it was a very very exciting day, and that was our orientation day. ये हर एक IIM में होता है. आपका फर्स्ट डे आपकी क्लासेस चालू नहीं होती है, यू हैव ओरिएंटेशन डेज. तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट चिपका है जिसमें मैंने लिखा है कि IIM रोहतक ओरिएंटेशन डे 1 डन. सो इट वॉज द फर्स्ट डे का memory that I have, and I wanted to share it with you all. Is it true that IIM Rohtak has 50% girls? Yes, that's true. Then Umesh is asking, what is highest package? See, for package and everything, what you can simply do is you can go to IIM Rohtak और किसी भी IIM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ. वहाँ पे आपको प्लेसमेंट का एक सेक्शन मिलेगा और उसके नीचे आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट मिलेगी. वो ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट होती है किसी भी IIM की. So as simple as that, you can click on that, you can download it, and you have all of it. What's the average, what's the median, what's the highest, you have all of it. पिक से लग रहा है आप काफ़ी बोर हो रहे हो. भाई लोग सुनो, अभी बेसिक क्यों? What is basic? Okay, then I was here talking about the orientation. That's the first day. Then second, followed by that, I had remedial classes. To be honest, does grad from distance impact in placements? It depends actually. Let's do one thing. Let me complete a first slide, and then I'll ask you if you guys have any questions.
तो फिर आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछो एंड विल आई टेक दोस क्वेश्चन देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज ऐसे तो यू आर इंटरप्टिंग मी अगेन एंड अगेन, सो आई मीन दैट्स एक्चुअली यू आर इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ द सेशन. I know where you're placed. Great if you know. I mean, listen, guys, questions बाद में. Yeah, exactly. Because this is something that not everyone tells you. In fact, when I was a cat aspirant, I never knew all of this. So it's something very very special. In fact, तो ठीक है. Correct. या सो ऑन द फर्स्ट डे आई हैड माई ओरिएंटेशन. और अगर आप IIM में एडमिशन लेते हो गाइस, तो आपकी पहले दिन से क्लास नहीं होती है. यू हैव ओरिएंटेशन जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, यू नो, एजुकेशन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, समटाइम्स दे एड्रेस यू एंड यू फील लाइक, यू नो, या यूर अ पार्ट ऑफ अ बिग इंस्टीट्यूट नाउ, जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आपको एड्रेस करने आ रहे हैं. सो दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग. बहुत स्पेशल फील होता है, लगता है कि आपने लाइफ में कुछ कर लिया है. उसके बाद फिर देन वी हैव रेमेडियल क्लासेस. रेमेडियल क्लासेस का स्क्रीनशॉट, वैसे ये रेमेडियल क्लास का नहीं है, इट्स जस्ट एक ऑनलाइन क्लास का स्क्रीनशॉट. इस स्क्रीनशॉट के पीछे भी कहानी है, आई शेयर अबाउट दैट. बट उससे पहले रेमेडियल क्लासेस बेसिकली क्यों होती है वो बताती हूँ. रेमेडियल क्लासेस इसलिए होती है बिकॉज IIM में ना डाइवर्सिटी ऑफ पीपल होता है. मतलब डॉक्टर्स भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी होंगे एंड व्हाट नॉट. ठीक है, तो अब उन सभी लोगों को टू ब्रिंग देम ऑन द सेम लेवल दे हैव रेमेडियल क्लासेस, सो दैट बिफोर द एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, इसीलिए रेमेडियल क्लासेस होती है. ऑनेस्टली रेमेडियल क्लासेस में बहुत हाई लेवल पढ़ाया जाता है, जो यू नो बहुत मतलब बेसिकली डराते भी हैं रेमेडियल क्लासेस में कि यू नो आप कोप अप नहीं कर पाओगे. बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे, लाइक आई रिमेंबर देयर वाज वन गाय हु यू नो क्विट IIM आफ्टर द रेमेडियल क्लासेस. ही वाज लाइक कि मेरे से रेमेडियल नहीं बन रही है तो मेरे से मतलब ओरिजिनल क्लासेस क्या बन पाएंगी. सो ही क्विट IIM. इवन दैट हैपेंस. सो या, रैगिंग होती है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. इन फैक्ट द बेस्ट थिंग अबाउट IIM कल्चर इज इन एवरी IIM यू डोंट कॉल योर सीनियर्स बाय सर और बाय दीदी और भैया. You only call them by their first name. So they are actually preparing you for the corporates. She's so well spoken and so cute. Hi. Thank you very much. Thank you. All right. Let's move ahead. ठीक है. And then मेरी जो जर्नी थी वो ऑनलाइन क्लासेस से स्टार्ट हुई. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि मेरा थोड़ा सा मॉडरेट कोविड वाला बैच था, तो मैंने 6 महीने ऑनलाइन निकाले. देख सकते हो इतने सारे लोग होते थे क्लासेस में, एंड वी यूज टू हैव दिस जूम मीटिंग एंड ऑल. एंड यू नो व्हेनेवर वी यूज टू हैव डाउट वी यूज टू रेज आवर हैंड्स अच्छे से एंड ऑल ऑफ दैट. वी यूज टू डू ऑल ऑफ दैट. और जब भी क्लास प्रेजेंटेशन होती थी ना, तो व्हाट वी यूज टू डू, जैसे एक ग्रुप है 6 लोगों का, तो वो 6 लोग फिर हम लोग प्लान कर लेते थे कि विल रेज आवर हैंड, ताकि हम लोग ना फर्स्ट वाली स्क्रीन पे आएंगे, एंड सो दैट द टीचर कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ ये 6 लोग हैं पूरे PPT में. सो मतलब पूरे इस PPT के प्रेजेंटेशन में ये 6 लोग हैं. तो दैट इज हाउ मतलब वी वांटेड टू मेक आवर एग्जिस्टेंट काउंट, बिकॉज ऑब्वियसली IIM बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वाला होता है. सो यू वॉन्ट टू मेक दैट योर एग्जिस्टेंस शुड काउंट. सो वी डिड दैट. एंड so we can call you Ankusha instead of ma'am. And yes, obviously you can call me Ankusha. I would love to hear Ankusha. 10 रुपए के गुलाब के फूल अंकुशा. अरे come on, don't do all these things. I will look into your doubt. Dynamite, I'll take it towards the end or after ending this slide. ठीक है, तो this is how even I have had online classes जिसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था. And honestly बता रही हूँ, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ MBA की बहुत अलग थी. ठीक है, तो ये जो था बेसिकली रियल लाइफ थी मेरी, जो ऑनलाइन क्लासेस थी. और जब हम लोग कैंपस में गए, वो वाली जो लाइफ थी दैट वाज रियल लाइफ, और काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था. इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो जो फ्रेंड्स हमने ऑनलाइन बनाए थे, दे वर नॉट माई ऑफलाइन फ्रेंड्स, यू नो. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही चीज़ें हुई थी, क्योंकि यू नो ऑनलाइन पीपल आर डिफरेंट एंड ऑफलाइन पीपल आर डिफरेंट. In fact, a lot of teachers we expected were, you know, oh, online में ऐसे हैं, but offline में ऐसे है. So there were a lot of things that changed when, you know, the entire medium of online classes changed into offline classes. So yeah, I've lived that life as well. Yes, I've taken loan for my MBA. All right. Then comes the IIM का life reality check. जैसे ही आपका IIM का orientation हो जाता है,
फिर उसके बाद आपकी रेमेडियल क्लासेस हो जाती हैं, आपकी रियल लाइफ क्लासेस चालू हो जाती हैं। आपकी क्लासेस के साथ चालू होता है IIM लाइफ का रियलिटी चेक। नाउ ये ना बहुत ही स्पेशल चीज़ है, और ये जो रियलिटी चेक होता है वो आपको अपनी लाइफ टाइम याद रहेगा। आई कैन गारंटी दैट। हर एक IIM में एक हफ्ता होता है, देयर इज 1 वीक, ठीक है। और वो वीक इस तरीके से प्लान किया जाता है दैट इट गिव्स यू अ रियल reality check of how your MBA is going to be in your college or in IIM. In IIM Rohtak, that week is known as आरंभ, मतलब शुरुआत, ठीक है। और वो पीरियड ऐसा होता है जहां पे आपको पता है असाइनमेंट्स आते हैं रात के 2 बजे भी, आपको मेल्स आते हैं रात के 2 बजे, और आपको असाइनमेंट मिलता है रात के 2 बजे, आपको सबमिट करना है सुबह 9 बजे तक, ठीक है। तो जितने भी घंटे आपको बीच में मिल रहे हैं उन घंटों में पता है आपको क्या क्या करना है। जो भी आपको असाइनमेंट मिला है वो हो सकता है, डेफिनेटली ग्रुप असाइनमेंट होते थे हमारे, मैक्सिमम पूरे असाइनमेंट ग्रुप होते थे। पहले तो ग्रुप्स बनाने थे, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद जो भी वो टास्क दिया हुआ है, PPT दी हुई है, यू हैव टू रिसर्च फॉर इट, देन यू डिवाइड द वर्क, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो वो जो 7 दिन होते थे ना, आप मानोगे नहीं, उन 7 दिनों में अगर हर दिन मैंने 3 घंटे की भी नींद ली हो ना, तो वो बहुत ज्यादा थी, वो इतना ज्यादा हेक्टिक था। There are a lot of people who quit and who opt out from that reality check वाला week. But अगर आप मेरी मानोगे, and if you get into an IIM, I would definitely recommend you to go through that entire reality check week of your college, because it's fun, it's real fun. लगता है कि IIM आए हो, लगता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो दूसरे कॉलेजेस से। Average student can do MBA? Yes, definitely you can do MBA. ठीक है, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया हुई थी। आई रिमेंबर इतना ज़्यादा बिजी होते, खाने पीने का ध्यान नहीं होता उस हफ्ते में आप लोगों को, आपको सिर्फ काम करना होता है बहुत सारा। एंड आप बहुत सारी नई चीज़ें एक हफ्ते में सीख जाते हो। देर आर लॉट ऑफ शॉर्टकट्स फॉर मतलब प्रेजेंटेशंस। पहले ना प्रेजेंटेशन मुझे भी नहीं पता था, आई यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन PPT, पावर पॉइंट पता है ना, तो पावर पॉइंट पे मैं बनाती थी। फिर उसके बाद आई गॉट टू नो कि देयर कैनवा, देन देर आर स्लाइड्स गो, देन देर आर मेनी अदर वेबसाइट्स जहाँ पे बहुत स्मार्टली आप आसानी से बना सकते हो PPTs। देन बहुत सारे ऐसे हमारे टास्क थे जिसमें वी हैड टू मेक दिस वीडियोज एंड वी हैड टू मेक सम पोस्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई लर्नड ऑल ऑफ इट इन जस्ट 1 week because I went through that entire reality check वाला week and I enjoyed it. आई नो इट वॉज टू हेक्टिक। मेरे मॉम एंड डैड कहते थे कि गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना, ये कैट का प्रेप करना और फिर IIM में जाना, ये इतना स्ट्रगल है यहाँ आने के बाद भी, मत करो MBA। दैट इज़ वॉट माई मॉम सेड व्हेन शी यूज्ड टू सी मी स्ट्रगलिंग। एंड एक तो इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो फिर एक वो भी रहता है, जैसे मेरे को एक बहुत रहता है थोड़ा सा नेतागिरी की, कुछ काम दिया है तो आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी द फर्स्ट वन टू कम्प्लीट इट। तो वो सब चीज़ें भी मैं करती थी, तो फिर मैं ज़्यादा लोड ले लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू वर्क रात रात भर, रिसर्च कर रहे हैं चीज़ें। तो बट दैट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब वो हफ्ता जैसे ही खत्म होता है, आप थोड़ी चैन की सांस लेते हो कि फाइनली ओके, अब हम कॉलेज आ चुके हैं, हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है, बट आप सांस लेते ही हो कि कमिटी सिलेक्शन आ जाता है, ठीक है। और ये हर IIM में होता है। ऑल राइट, सो कमिटी सिलेक्शन में भी बहुत सारी कमिटीज होती है एंड बहुत सारे क्लब्स होते हैं। Now I was a part of the placement committee, and the placement committee is the most coveted committee in any MBA college, not just IIM. I'm talking about any MBA college. किसी भी MBA college में अगर आप पूछोगे which is the most coveted committee, जिसका बहुत सारा काम करना पड़ता है, जहाँ सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा टफ है, that is the placement committee, and I got selected in it. अब ऐसा नहीं रहता है कि यू गेट अ चांस टू अप्लाई फॉर ओनली 1 कमिटी। IIM रोहतक का सीन ये था कि आपको 5 एप्लीकेशंस दी हुई है, जिसमें से आपको 3 कमिटीज में अप्लाई करना है और 2 क्लब्स में अप्लाई करना है। और अगर आप 5 में अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 एप्लीकेशंस देते हो, तो आपके रेगुलर क्लासेस के साथ साथ इन जो कमिटी सिलेक्शन की प्रोसेसेस है वो भी साथ में चलती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये सब 1.5 महीना चलता है। कमिटी सिलेक्शन इज ए लॉन्ग प्रोसेस। आई रिमेंबर मेरा प्लेसमेंट कमिटी का इंटरव्यू रात के 3 बजे हुआ था और वो 1.5-2 घंटा चला था। That's the most memorable interview I've given of my entire life till date.
इट वॉज सो ग्रिलिंग, इट वॉज सो ग्रिलिंग, बहुत ज्यादा, मतलब they actually were like, they made me self doubt myself. But the last interview was very chill. They were like कि हम लोग आपको ग्रिल कर रहे थे, we just wanted to know कि अगर आपके साथ इस तरीके से बात होती है तो how you deal with things. And everything turned around. सो एवरीथिंग वॉज एन एक्सपीरियंस. बहुत सारी चीज़ें IIM के एंटायर जर्नी में डिफिकल्ट हो जाएंगी, बट वंस यू कंप्लीट दोज थिंग्स, नो, यू रियलाइज दैट थिंग्स आर मैजिकल. You are learning from every small things that is happening, that are happening with you in your IIM journey. तो व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट प्रेपरेशन का सिलेक्शन प्रोसेस, वी हैड 10 राउंड्स. तो अब आप समझ लो, 10 राउंड्स में सब कुछ उनने देख लिया था. GD, PI और पता नहीं क्या क्या, रिसर्च वर्क, PPT, जितना भी सोच सकते हो ना आप, अलग अलग टाइप के चीज़ें जो एक बच्चे को करवा सकते हो आप, तो सब कुछ करवाया था सिर्फ कमिटी सिलेक्शन, प्लेसमेंट प्रेपरेशन के कमिटी सिलेक्शन में. ऑल राइट, देन द नेक्स्ट वॉज द क्लब का सिलेक्शन. अब क्लब, 2 क्लब थे. आई डिड अप्लाई फॉर 2 क्लब्स. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मम्मी मैं लाइव हूं, आप प्लीज मत ठक ठक करो. ऑल राइट, सो द थर्ड थिंग वॉज अ लॉट ऑफ वर्कलोड coming to the committee selection. Coming to the committee selection process, क्या बोलते हैं, इट डिपेंड्स नाउ. हाँ, व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप ऐसी कमिटी में हो जिसका बहुत सारा काम है तो वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है. या एंड इफ यूर इन अ कमिटी जिसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं होता है. तो इट डिपेंड्स. अब देखो, आपका कमिटी सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इफ यू गेट इन टू अ कमिटी लाइक प्लेसमेंट कमिटी, मेरा स्केड्यूल ऐसा होता था कि 8:30 बजे से, सुबह के 8:30 बजे से 1:30 बजे तक मेरी क्लासेस है, ठीक है. और 1:30 बजे के बाद मैं खाना वाना खाती थी. फिर 2 बजे से 6 बजे तक दोज 4 आवर्स वर डेडिकेटेड टू प्लेसमेंट कमिटी का काम. तो 4 घंटे में काम करती थी. उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया. देन आई यूज टू हैव रेगुलर एग्जाम, मतलब एग्जाम या क्विज, जो भी कुछ कह लो, वो होता था हमारा. दैट यूज टू बी 1.5 आवर. फिर उसके बाद आई यूज टू अगेन हैव माई डिनर. और फिर रात में 9:30 से जब तक रात तक भी जितना भी काम होता था फॉर द नेक्स्ट डे, विच यूज टू बी लॉट ऑफ केस स्टडी रीडिंग्स, देन लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग शीट बेसिकली, एंड देन लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड PPT प्रेजेंटेशन. तो ये बात की प्रोसेस थी जिसको करते करते 1-2 बज जाता था. बट मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक इसलिए थी बिकॉज आई वॉज द पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमिटी, ठीक है. बट इन केस इफ यू नॉट अ पार्ट ऑफ अ कमिटी जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, तो लाइफ इज चिल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन में स्पोर्ट्स कमिटी थी, तो स्पोर्ट्स कमिटी अब ऑनलाइन में क्या ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करेगी, तो उनके लिए इट वॉज चिल ओनली. उनके लिए मेन चीज़ें खत्म हो जाती थी 1:30 बजे, उनकी क्लासेस खत्म, उनका काम खत्म. बट अगेन इट डिपेंड्स कमिटी टू कमिटी. हर कमिटी अलग अलग चीज़ें आपको सिखाती है, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट व्हेन यू वर्क अ लॉट. तो दैट इज ऑल. तो वर्कलोड की बात कर ली. फिर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ थिंग, दैट इज कल्चर. कल्चर हर एक कमिटी का काफ़ी अलग होता है. अगर प्लेसमेंट कमिटी की बात करूँ, वी हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. वी वर टॉट हाउ टू टॉक विद HRs, वी वर टॉक हाउ टू negotiate things and speculate things, and how to draft mails and all of it. So there was a very stringent culture that was there in the placement committee, but it taught us a lot of things. So I saw a good self growth when I was a part of that committee. तो ठीक है, दैट डिपेंड्स आप किस कमिटी के हो. अगर आप कल्चरल कमिटी के हो तो वहाँ ऐसा कल्चर नहीं होगा. वहाँ कैसा कल्चर होगा कमिटी का, चिलिंग एंड हैविंग फन एंड ऑल ऑफ दैट. But then you learn there as well to how, you learn to organize events, big events. तो ये सब सीखते हो. आई एम पुअर इन इंग्लिश, सो कैन आई डू ना? ऑब्वियसली यू कैन डू. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. ऑब्वियसली यू कैन डू. ठीक है जी. फिफ्थ थिंग इज द रिव्यूज. यस, रिव्यूज मतलब क्या होता था, अगर आपका, बट रिव्यू वाली चीज़ ना सारे IIMs में नहीं होता है, कुछ कुछ IIM में होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे IIM रोहतक में रिव्यू वाली चीज़ थी. अगर आप कमिटी में सिलेक्ट हो भी जाते हो तो कहानी डज नॉट एंड्स देयर, बिकॉज कमिटी में सिलेक्ट तो 24 लोग हो रहे हैं, बट एट द एंड वो कमिटी, फाइनल कमिटी जो होती है, वो सिर्फ 12 लोगों की बननी है. तो इन द बिगिनिंग यू नो दैट 12 पीपल विल बी किक्ड ऑफ और might leave by themselves by their own choice.
बट इतना पता होता था कि भाई कुछ ही लोग बचने वाले हैं फाइनल टीम में। अब इस रिव्यू के चक्कर में there used to be a tremendous competition between all those 24 people. ये कल्चर आई वुड नॉट रियली सपोर्ट दिस कल्चर जिन IIMs में लाइक इन IIM उदयपुर। उनकी जो फर्स्ट कमिटी सिलेक्शन होता है दैट इज द लास्ट कमिटी सिलेक्शन, उनमें कभी भी कमिटी से किसी को निकाला नहीं जाता, कोई एलिमिनेशन नहीं होता। तो कमिटी के अंदर के जो डायनेमिक्स रहते हैं वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं इन कंपैरिजन टू द कॉलेजेस जहाँ पे एलिमिनेशन होता है। रिव्यूज आर बेसिकली एलिमिनेशन, बट अगैन इट इज़ इंपॉर्टेंट आई फील, वो शायद रिव्यूज इसलिए कल्चर में है ताकि पता चलते रहे कि कितना कौन काम कर रहा है, उसको इवेल्युएट करता रहे। तो ऐसा ना हो कि एक बार कमिटी में सिलेक्शन हो गया तो यूर लाइक ओ नो I am the selected, I am done, my work is done. That should not be the attitude for a candidate. That is why they had reviews. And yeah, फिर जब रिव्यूज भी खत्म हो जाते हैं और आपका फर्स्ट ईयर खत्म होने में आता है, here it was the month of February when this mail came to the entire batch that the placement committee of IIM Rohtak PGP 12 is this. So I was very, very happy. And for every student, when that person makes to the final team of that committee, बहुत खुशी की बात होती है. So I've enjoyed that as well. It's a very, very special feel, honestly. ठीक है. Then coming to the SIP preparation. जैसे ही आपका कमिटी सिलेक्शन हो जाता है ना guys, you have your SIP का preparation. Now what do you mean by SIP? SIP is basically summer internship preparation. अब समर इंटर्नशिप प्रेपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्ट विद योर सीनियर्स. सीनियर्स से क्यों कनेक्ट करना होता है? बिकॉज उनको प्रायर एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है किस टाइप की कंपनीज आती है, किस टाइप के रोल आते हैं, किस टाइप की कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से प्रेपरेशन करना चाहिए. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू कनेक्ट विद योर सीनियर्स एंड स्पेशली build connection with those seniors who you look up to, who you idolize. Idolize तो एकदम से नहीं करोगे, but I would say at least आपको पता होता है कि these are the couple of people who are doing really great in my senior batch. To connect with them, talk to them, build relations with them, और उनसे फिर सीखो. Second point, set your priorities. Priorities basically क्या होता है? दो टाइप के होते हैं. First can be, पहले जानो कौन कौन सी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है. कॉलेज में सपोज फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी आ रही है, तो यू आर लाइक कि नहीं मुझे मार्केटिंग का रोल चाहिए, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टू मार्केटिंग. तो आप अपनी कंपनीज जो भी आती हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे कि मेरी ये टारगेट कंपनीज है. ठीक है जी. सेकेंड प्रायोरिटी होती है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट इज योर ब्रांड, मतलब जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो. सेकेंड कैन बी द जॉब रोल, कि भाई आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, यू वांट टू बी अ प्रोडक्ट मैनेजर और मार्केटिंग हेड और व्हाटएवर और कंसल्टेंट. देयर आर लॉट ऑफ जॉब रोल्स, राइट? जॉब रोल. थर्ड थिंग इज मनी. इन तीनों में से इफ यू गेट कॉम्बिनेशन और ऑल ऑफ इट, इट इज सुपर गुड. और द लीस्ट दैट यू कैन गेट इज एनी वन ऑफ देम. बट अगर इनमें से तीनों भी नहीं मिलता है, जिन बच्चों को नहीं मिल पाता है, देन दैट इज व्हेन आई वुड से कि आपने अपनी SIP प्रेपरेशन के साथ जस्टिस नहीं किया है, विच इज नॉट रियली अ गुड थिंग बिकॉज यू कमिंग टू एन IIM, यू शुड एटलीस्ट गेट समथिंग फॉर योर सेल्फ. ठीक है जी. थर्ड थिंग is to apply for the companies that you have targeted on the basis of your priorities. अब एक छोटी mistake यहाँ पे बच्चे करते हैं is that now you know that you're a part of an IIM. You know that your credibility has increased, your marketability have increased, and you know that I am a part of an IIM. मुझे सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, मेरा पैकेज अच्छा होने वाला है, मेरी समर इंटर्नशिप भी अच्छी लगने वाली है, कंपनीज भी बढ़िया आ रही है. तो स्टार्टिंग में बच्चे एफर्ट ही नहीं डालते हैं. बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ ऑफ एवरी IIM का SIP प्रेपरेशन या फाइनल प्रेपरेशन. हमेशा याद रखना, जो कंपनी स्टार्टिंग में आती है ना, दे आर द बेस्ट कंपनीज. सो डू नॉट वेट बाद की कंपनीज के लिए, बिकॉज आई एम श्योर बाद की कंपनीज आपकी पहले जो कंपनीज आती हैं उनसे अच्छी नहीं होंगी. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज, देन टेक इट सीरियसली फ्रॉम डे वन. जिस दिन से पहली कंपनी आना चालू हो जाती है या जिस दिन आपका प्लेसकॉम एक मीट रखता है कि गाइस वी गोना स्टार्ट आवर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम प्लेसमेंट का,
उस दिन से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, और ऐसे प्रेपरेशन करो कि अगर शॉर्टलिस्ट आ गया है, सो दैट चांस फॉर यू इज टू मेक इट और ब्रेक इट। ठीक है जी। देन कम्स योर फोर्थ थिंग, दैट इज सीवी एडिट। ना सीवी एडिट की बात ये होती है, आप जैसे ही कॉलेज में जाते हो तो आपके पास एक सीवी होता है पहले से, दे गिव यू अ टाइम फ्रेम जहां पे आप एडिट कर सकते हो अपने सीवी को, बट आफ्टर सम टाइम दे फ्रीज योर सीवी। तो फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सीवी में वही चीजें डालो विच अलाइंग विद योर प्रायोरिटीज ऑफ द कंपनीज, जिन कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो मार्केटिंग में अप्लाई करना, ठीक है, मार्केटिंग वाली कंपनीज में, तो आप वही इंटर्नशिप डालो जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, नॉट फाइनेंस वाली इंटर्नशिप्स, राइट। तो आपने सीवी को उसी तरीके से आप अलाइन करो, सो दैट आपका जब सीवी कंपनी के पास जाए तो आप आराम से कंपनीज में शॉर्टलिस्ट कर पाओ। बट अगर यहां आपने गलती कर दी, अपना सीवी एडिट नहीं किया बिफोर द सीवी फ्रीजेस, तो वहां गलती हो जाएगी। Is there any stipend within SIP? Yes, people get stipend of lakhs of rupees. I am tensed for my PI. What to do? PI as in I am PI. Neha? Okay. Hello. Which PI, Neha? All right. Oh, don't worry about that. In fact, I guess in this on the same channel itself, I guess there are a lot of videos regarding PI preparation strategies, and so you can go ahead and see those videos. I guess that'll definitely help. ठीक है जी? All right. Okay, okay, okay. I am both gaya. Okay, fine, fine. Do not worry. If it's done, then you cannot change it. Whatever you have done is done now. And if you are going to have your PI, the only two things that I would suggest you is to be honest with the panelist, and second, to have a storyline behind every answer that you give. So this will help you anyways. I just had my PI today, Neha. It was smooth. The interview was just 15 minutes. Oh, that's nice. That's good. Now, the fifth thing when you're preparing for SIP is to prepare the company doc. Company doc basically एक ऐसा document होता है जो placement preparation committee आपको provide करती है। उसमें almost सब कुछ covered रहता है about the company, news related to the company, mission, vision of the company and everything in and around that particular company. तो आपको वो doc को बिल्कुल घोल के पी लेना है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है कंपनी वेबसाइट। कंपनी वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो द इंटरव्यूअर आर एक्सपेक्टिंग दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट कंपनी, एटलीस्ट आपने वेबसाइट तो देखी हुई है एंड यू हैव नेविगेटेड थ्रू द वेबसाइट, तो ये चीज जरूर करनी चाहिए। सेवेंथ इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। व्हाई एम आई सेइंग दैट कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको इंटरव्यूअर पूछेगा, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट नाउ दैट यू आर अ पार्ट ऑफ एन IIM, कि अच्छा बताइए कुछ ऐसी चीज दैट इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू आवर वेबसाइट, कि कोई ग्लिच है, या इज देयर एनी वे वी कैन इम्प्रूव इन कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया हुआ है, देन दैट थिंग विल बी लाइक दिस फॉर यू। यू विल बी एबल टू से इजीली कि हाँ ये चीज जो है वो हमारी कंपनी नहीं करती है बट वो कंपनी करती है, या ये चीज है इन विच वी आर अहेड than our competitors. So our interviewer would love to hear that from you. ठीक है जी? Then the eighth thing is align your HR questions with the vision and mission of the company. HR questions बोले तो tell me about yourself, you know, why should we select you? Why do you want to do marketing? Why do you want to, why have you applied for this job role? X, Y, Z and so on, right? What was your average sleep hour before SIP? Average sleep hour before SIP, it was 4 to 5 hours. Because the initial 6 months, Ayush, are really tough to survive. Really tough. Because अभी आप देख रहे हो ना, मैं कितनी सारी चीजें बता रही हूँ। ओरिएंटेशन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद रेमेडियल क्लासेस हुई, फिर क्लासेस चालू हुई तो वो रियलिटी चेक वाला जो वीक है वो चालू हो गया। वो वीक खत्म नहीं हुआ उतने में आपकी कमिटी सिलेक्शंस आ गए। कमिटी सिलेक्शन खत्म हो नहीं रहे हैं, हम लोग कमिटी के अंदर थोड़ा बहुत काम सीख ही रहे हैं सिलेक्शन के बाद, तो आपका ये SIP प्रेपरेशन आ गया। तो स्लीप तो नहीं हो पाता है। 4 आवर्स एवरेज मान लो आप, इनिशियल 3 months यही आपका स्लीप साइकिल रहता है। टफर देन कैट प्रेप,
आई गेस कैट प्रेप में एक चीज रहती है गाइस कि एक अनसर्टेनिटी रहती है कि आप डी डे पे कैसा परफॉर्म करोगे, एंड फॉर मेनी ऑफ यू इट वुड बी लाइक यू नो कि क्या हम क्रैक कर पाएंगे, क्या वो दिन अच्छा होगा नहीं होगा। बट जो अभी ये जो प्रेपरेशन चल, मतलब ये जो पूरा जर्नी है बाकी का, इट इज़ लाइक यू नो इट्स जस्ट अ स्ट्रगल एंड इट इज़ अ प्रोसेस। तो चाहे वो प्रोसेस टफ हो, इट डज नॉट मैटर, यू नो एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूट ऑफ दिस एंटायर हार्ड वर्क। तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। तो आई वुड से इट्स नॉट टफर दैन कैट प्रेप एट ऑल. In fact, it is worth it. I've gone through all those tough times, and look at me now. I'm happy about it. I'm happy sharing all of it because I know the experiences that I have. Other students who have not been into an IIM, they don't have it. So yeah. Um, all right. Thank you, Akhil. Then we have what? I talked about this aligning. Yeah. So 8 points is actually very important, and I want to exaggerate on this. Is that कि HR क्वेश्चन जितने भी होते हैं बहुत सिंपल होते हैं. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी चूज यू, दिस दैट व्हाट नॉट. उन सब में अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स भी बता रहे हो, वीकनेस भी बता रहे हो, ट्राई टू अलाइन योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड अदर HR क्वेश्चन विद द मिशन एंड विजन ऑफ दैट कंपनी. उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को लग रहा है कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये जो चीजें बोल रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ये है, ये तो हमारी कंपनी की विजन है, यही तो हमारी कंपनी का मिशन है. तो there are a lot of good chances that that person will select you or will give you at least more points in comparison to other fellow mates. ठीक है जी. Coming to the 9th point, that is story line. Story line अभी भी अगर किसी का इन IIM का इंटरव्यू बचा हुआ है, I would highly recommend that person to have a story line. Story line basically मतलब ये होता है किसी भी HR क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बता रहे हो, ठीक है, कि मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ, या मैं 1000 लोगों का इवेंट अकेले संभाल सकता हूँ, तो आपकी एक स्टोरी लाइन पीछे होना चाहिए कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो. देयर शुड बी अ रैशनल बिहाइंड इट. इफ देयर इज नो रैशनल, then that person then that statement does not make any sense, और अगर सेंस नहीं तो it will not have that much weightage. So everything that you should say or that you would say should be followed by a storyline or a rationale. ठीक है जी, because then it validates it. Simple. And if you have quantitative data or numeric data to say कि आप अगर बोल रहे हो कि मैंने इंटर्नशिप में डिजिटल मार्केटिंग की थी and I'm very good at it, बट उसको आप वैलिडेट कैसे करोगे? टू टेल देम कि पहले उनका मार्केटिंग से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग करना उनकी स्टार्ट की अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके वजह से उनका 20% हाइक हुआ, एंड यू हैव द प्रूफ ऑफ इट, यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ इट, सो यू आर वैलिडेटिंग इट. सो दैट स्टोरी लाइन, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10th and the most important thing is honesty. Guys, remember, आपके कैट के इंटरव्यूअर्स हो या आपके SIP के इंटरव्यूअर्स हो या फाइनल प्लेसमेंट के इंटरव्यूअर्स हो, दे एक्सपेक्ट बेसिक ऑनेस्टी फ्रॉम योर एंड. जहां आप झूठ बोलते हो, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू कैच यू. इट इज वेरी वेरी इजी. उन्होंने हजारों लोगों के इंटरव्यूज लिए हुए हैं. दे नो कि कहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है, कहाँ नहीं बोल रहा है, एंड आपका कॉन्फिडेंस वहाँ ब्रेक हो जाता है जहाँ आप झूठ बोलते हो. एंड व्हेन यू आर ऑनेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे होता है. सो ये इंटरव्यूअर आराम से पहचान सकता है. तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि भाई ऑनेस्टली जो भी है, कोई चीज़ नहीं आती है, टेल देम that sir, at this point in time I may not be aware of this topic, or I'm not aware of this topic, but I'll definitely give it a read. ठीक है, ऐसे बिल्कुल हम्बल तरीके से आराम से सॉरी बोल के बोल दो कि you'll read about it. As simple as that. Simple. उसके बाद then comes 15th November, that was 2022. 2021? Yeah, 2021, sorry. So 15th November 2021 में मैं ऑनबोर्ड हो गई थी. कहाँ पे? IIM रोहतक के कैंपस पे. अब तक मेरी जितनी भी लाइफ चल रही है, SIP प्रेपरेशन चल रही है, SIP लग भी गई मुझे ऑनलाइन मोड पे. द सेकेंड कंपनी दैट केम टू माई कॉलेज ना, उसी में मेरी SIP लग गई थी. सो या 15th नवंबर में कॉलेज पहुंच गए. कॉलेज पहुंचने के बाद फिर चालू होती है रियल IIM जर्नी. तो दिस वाज द फर्स्ट फोटोग्राफ जो ऊपर आप लोग देख रहे हो.
मेरा जो मैंने वहाँ पे आई एम रोहतक के वहाँ पे खींची थी. देन वी हैड दिस सीक्रेट सांता वाला सेलिब्रेशन. तो क्रिसमस इस तरीके से सेलिब्रेट किया था. और जो नीचे ये फोटो दिख रही है आप लोगों को, ये हमारे न्यू ईयर की फोटो है. सो वी हैड गुड पार्टी एट दैट पॉइंट इन टाइम. वी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर वेरी नाइसली एंड वेलकम 2022 वेरी वेरी नाइसली. आई स्टिल रिमेंबर दैट पार्टी. एंड ऑनेस्टली सारे बच्चे जितना ज़्यादा वर्क हार्ड वहाँ पे करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा मज़ा भी वहाँ पे आता है. ग्रेट वी हैड ग्रेट सेलिब्रेशंस. आई एम आर इज सो लकी टू यू दीदी. ओके, थैंक यू. इफ़ यू डोंट गेट एस आई पी देन, ऐसा कभी होता नहीं है. आई एम्स में जाओगे तो ऐसा शायद नहीं होगा कि यू नॉट गेटिंग एन एस आई पी. यू डेफिनेटली विल गेट एन एस आई पी. यू हैव अ हैप्पी फेस. थैंक यू वेरी मच. ठीक है जी. तो ये सारे सेलिब्रेशन हुए जैसे ही हम कॉलेज गए. 15 नवंबर गए, फिर 25 दिसंबर आ गया तो सीक्रेट सेंटा सेलिब्रेट किया. फिर न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया. ठीक है. एंड उसके बाद दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल. उस टाइम पे आई वॉज, जस्ट अ सेकेंड, उस टाइम पे इट वाज मंथ ऑफ जनवरी आई थिंक, जब मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट माई यूट्यूब जर्नी. वो भी मैंने इसलिए सोचा बिकॉज आई वॉज अ रेडियो जॉकी इन माई ग्रेजुएशन का टाइम. तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा से कहते थे, और क्लास प्रेजेंटेशन में भी मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी. तो माई फ्रेंड्स यूज पुश मी अप कि अंकुशा तेरे को यूट्यूब चालू करना चाहिए, कुछ व्लॉग्स बना, कुछ कर. तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट I made and one of my friend made, recorded for me. I'll play this video for you. Just give me a minute. Let me know if the sound is audible to you all or not. ठीक है जी. हम कर देते हैं इसको फुल वॉल्यूम. एक सेकेंड जस्ट. So hi everyone, I am Ankusha and this is my very first vlog at IIM Rohtak. So my vlog channel will be basically about how is life at IIM Rohtak. तो देख लो, यही है लाइफ. Cameraman, please rotate the camera. All right. So this is the very first clip of the video जिसमें मैं vlogging करने की practice कर रही थी. And yeah, फिर on 4th of February 2022 I started my YouTube channel and yeah, it's doing pretty good now. And then came the period for summer internship. अब मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका था. आई हैव एंटर्ड मे का मंथ, मे आई शुड से, या मे का मंथ समर इंटर्नशिप का. 2 महीने की इंटर्नशिप होती है IIMs की. ठीक है जी. तो मेरी 18th ऑफ अप्रैल को स्टार्ट हुई थी टिल 18th ऑफ जून. ठीक है जी. ऑल राइट. फिर समर इंटर्नशिप जो है वो मेरे चालू हो गया. वो पीरियड वॉज वेरी गुड. मेरी ऑफलाइन ही थी समर इंटर्नशिप एंड आई हैड लॉट ऑफ फन इन मुंबई. आई टेल यू. ठीक है. तो देख सकते हो मैं काफ़ी घूमने वूमने गई. एंड या देयर इज दिस फोटो ऑफ हैप्पी PPO. तो इसकी भी कहानी है विच आई टॉक अबाउट. बट पहले बात करते हैं कि समर इंटर्नशिप का पीरियड कैसा था. तो सभी बच्चों के लिए याद रखना, ये पीरियड जो होता है वो मक्खन पीरियड होता है. वाई? देयर आर रीजन्स टू इट. फर्स्ट थिंग, आपको काफ़ी अच्छा पे मिलता है इफ़ यू हैव गॉट सिलेक्टेड इन टू अ गुड कंपनी. एंड गुड कंपनी मैंने आपको पहले ही बोला, जो इनिशियल कंपनीज आती है, अगर आप वहाँ सिलेक्ट हो गए हो उस टाइम पे तो आपको काफ़ी अच्छी कंपनी भी मिलती है, ब्रांड नेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है एंड गुड जॉब रोल भी मिलता है. तीनों चीज़ें, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मिल जाता है आपको. ठीक है. जब आप वहाँ जाते हो सिटी में काम करने, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस नॉर्मली आपको कहाँ भेजेंगे? वो हेड ऑफिस में. हेड ऑफिस किसी भी बड़े कंपनी का आप उठा लो, बहुत अच्छा होगा. यू विल बी अमेज्ड बाय द ऑफिस. ठीक है. देन सेकेंड थिंग, क्योंकि आप एक इंटर्न होते हो, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं होती है. यू गेट मेंटर्स, यू गेट गाइड्स जो थ्रू आउट आपके इंटर्नशिप में आपको गाइड करते हैं कि अंकुशा, आपका जो फर्स्ट वीक है, दीज आर द रीडिंग्स दैट यू हैव टू गो थ्रू. फिर मैंने रीडिंग्स कंप्लीट की. देन माई मेंटर टोल्ड मी कि आपको इस के बारे में रिसर्च करना है. फिर ही थ्रू आउट द जर्नी गाइडेड मी अप कि आप इनसे बात करो. ही गेव मी द कॉन्टैक्ट नंबर्स. आई रीच्ड आउट टू देम. आई वेंट टू डिफरेंट I am not allowed to name all of that, but ठीक है. So I did my research work, then I came up with my own recommendations. मेरे recommendations को refine करने में भी मेरे mentor ने काफ़ी help की. मेरे guide को फिर मैंने अपना mid review दिया, उनने कुछ feedbacks दिए, then I worked on those feedbacks. So it was a very good work that I got. Also because मेरी जो internship लगी थी वो initial companies में लग गई थी.
Why you didn't participate in student exchange program? That is because IIM रोहतक में student exchange program नहीं होता है sadly. या उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बट अब कुछ कर नहीं सकते, जब नहीं होता है तो नहीं होता है. ठीक है, तो इंटर्नशिप का पीरियड काफ़ी बढ़िया था और उस टाइम पे आपको डेफिनेटली बहुत सारा टाइम मिलता है घूमने फिरने के लिए. देख सकते हो मैंने काफ़ी घूमा है मुंबई. तो जैसे ही मेरा इंटर्नशिप का टाइम खत्म हुआ, आई वॉज इन कॉलेज ऑन 13 जून. ऑल्दो मेरी इंटर्नशिप खत्म हो रही थी 18 जून को. हमारा कॉलेज जल्दी खुल रहा था, तो मैं 13 या 14 को पहुंच गई थी कॉलेज. एंड कॉलेज पहुंचने के सिर्फ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आई गॉट द न्यूज़ दैट आई हैव गॉट पीपीओ. पीपीओ इज बेसिकली प्री प्लेसमेंट ऑफर. प्री प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारा प्लेसमेंट सीजन या हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही मेरे पास एक जॉब लेटर है विच इज गिवन बाय द कंपनी जिसमें मैंने इंटर्नशिप की है. अब पीपीओ किसको मिलता है? फर्स्ट थिंग, ऐसे इंटर्न को जिसने अच्छा काम किया हुआ है एंड द कंपनी लाइक द रिकमेंडेशन एंड वांट दैट इंटर्न टू वर्क विद देम एज द फुल टाइम एम्प्लॉय. तो उस इंसान को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है. अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, जैसे ही मुझे पीपीओ मिला था ना गाइस, तभी मैंने बोला कि एक ट्रांजिशन हुआ मेरे लाइफ में. जिस दिन मुझे पीपीओ मिल गया, आई गेस जुलाई 4 को मिला था या 3rd 4th ऐसे ही कुछ तो मिला था, मुझे पीपीओ मिला था. आई वॉज लाइक कि सेकेंड ईयर इज ऑल अबाउट फाइनल प्लेसमेंट प्रेपरेशन. सेकेंड ईयर में सबका मेन मोटिव यही रहता है कि आपको एक अच्छी फाइनल प्लेसमेंट मिल जाए. अब क्योंकि मुझे पीपीओ मिल गया था, आई गॉट द जॉब. अब सेकेंड ईयर चालू भी हुआ है, सिर्फ 10 दिन हुए हैं चालू हुए, मैं पूरे साल भर क्या करने वाली हूँ? आई हैड नो क्लू. अब बात ये भी रहती है, पीपीओ अगर आपको मिल जाता है एंड विच इज अबव अ थ्रेश होल्ड. फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में 13 lakhs के ऊपर अगर आपका पैकेज है, आपका पीपीओ पैकेज है अगर, तो फिर यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन फाइनल प्लेसमेंट्स. तो जिसके वजह से पीपीओ मिल गया था मुझे, तो अब मैं दूसरी कंपनीज में नहीं बैठ सकती थी. तो अब मुझे फाइनल प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी. बट बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन एंड आई हैव बिन दैट पर्सन, मैंने कॉलेज में 13 जून को आई थी, बट उसके बाद के जो दिन थे 10-15 दिन, उसमें मैंने जो पढ़ाई की है फाइनल प्लेसमेंट प्रिपरेशन की, बिकॉज आई हैव बिन, एज आई टोल्ड यू, आई हैव बिन वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. मेरे को इसमें भी ये था कि जो भी स्टार्टिंग की कंपनीज आएंगी ना, 1 या 2, मेरे को उनमें क्रैक करना है एंड आई वॉन्ट टू गेट इन टू दोज कंपनीज. मैंने उस 10 दिनों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चालू कर दिया था. आई अगेन स्टार्टेड कनेक्टिंग विद माई सीनियर्स. मेरी प्रायोरिटी सेट करी फिर मैंने कि कौन कौन सी कंपनीज में मुझे जाना है, किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है, क्या मुझे जॉब रोल सच में आगे परस्यू करना है, वो डिसाइड किया. अपना सीवी एडिट किया ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रायोरिटीज़. फिर ये जो अपन ने सब कुछ बात की एसआईपी में, वो सब तो मैंने किया. बट फाइनल प्लेसमेंट प्रेपरेशन एक्चुअली थोड़ी अलग होती है एंड इट इज़ वेरी इंटेंस. बिकॉज यहाँ पे आपको कंपनी लाखों दे रही है, राइट, एंड दे वॉन्ट यू टू वर्क एज देयर फुल टाइम एम्प्लॉय. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक राउंड नहीं होता है विच इज़ पीआई, विच हैपन्स इन मोस्ट ऑफ योर समर इंटर्नशिप वाले इंटरव्यूज, कि वहाँ पे सिर्फ एक पीआई होगा एंड आइदर दे विल सिलेक्ट यू और विल नॉट सिलेक्ट यू. बट फाइनल प्लेसमेंट प्रेपरेशन की प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग होती है. आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट बोलो या ऑनलाइन टेस्ट, एक टेस्ट होता है, फॉलोड बाय जीडी, followed by technical interview and then followed by your what do you say, HR का interview. तो ये 4 चीज़ें होती थी in most of the companies. Now this process was very intense. That is why I didn't wanted to delay my preparation. और जैसे ही मैं आई कैंपस पे, I started my preparation. एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने की which are listed here. First is case in point. This is the name of a book. This is especially for people who are not very good with interview. मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने इस बुक को बिल्कुल घोल के पी लिया था. नो, आई डिड नॉट डू दैट बिकॉज आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इंटरव्यूज़. मेरे को थोड़ा एच था, मतलब मुझे अंदर से लगता था कि मैं इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकती हूँ. तो मैंने इस बुक का सिर्फ ऊपर ऊपर कुछ कुछ HR क्वेश्चंस देखे थे जिनमें जिनमें मुझे क्लैरिटी नहीं थी. उन क्वेश्चंस का थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए मैंने केस इन पॉइंट बुक पढ़ी थी. बट ऐसे लोग दोज हु आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, दे फियर इंटरव्यूज, उनके लिए दिस बुक इज गीता. दे शुड डेफिनेटली गो थ्रू दिस बुक एंड गिव इट अ रीड एंड बिल्कुल घोल के पी लो. सेकेंड इज केस स्टडी बेस्ड बुक. केस स्टडी बेसिकली ना
कंसल्टिंग वाले जितने भी रोल आते हैं या कंपनीज आती है, BCN आती है, इन टाइप की जो कंपनीज आती है, दे गिव यू गेस्टिमेट्स, ठीक है। गेस्टिमेट्स के लिए केस स्टडी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। केस स्टडी बुक्स किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है? FMS कॉलेज की बहुत अच्छी है। IIMA, IIMB एंड IIMC की भी जो केस स्टडी बुक्स है वो बहुत ही अच्छी है। यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू ऑल दोज बुक्स, ठीक है जी। सो उमेश इज आस्किंग व्हाट इज बुक नेम? बुक नेम इज केस इन पॉइंट। फॉर इंटरव्यू द नेम ऑफ द बुक इज केस इन पॉइंट, ठीक है जी। देन कम्स थर्डली योर करंट अफेयर्स। अब अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो सिंपली मैंने अपने यूट्यूब के वीडियोस देखना चालू कर दिए थे, मिंट पे न्यूज़ पढ़ना चालू कर दिया। आई डाउनलोडेड दिस ऐप इन शॉर्ट्स अगेन इन माई मोबाइल फोन एंड मैं रोज देखती थी हेडलाइंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेहा इज आस्किंग मैम पैनलिस्ट हाउ दे डिसाइड दैट दिस स्टूडेंट शुड बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन IIM? ये हाउ विल आई नो? How will I know this, Neha? I don't know this. Gaurav, case study books होती है, इनका कोई नाम नहीं है, बुक का नाम नहीं है, सिंपल केस स्टडी बुक्स होती है FMS की, IIMA, IIMB और IIMC की, ठीक है। इफ यू वांट द लिंक ऑफ दीज बुक्स, I can definitely share the link of these books in the description of this video. I'll share it with the Unacademy team. They'll add it in the description of this video. बुक का कोई नाम नहीं है गौरव, बुक का यही नाम है, केस स्टडी बुक ऑफ FMS, केस स्टडी बुक ऑफ IIMA, केस स्टडी बुक ऑफ IIMB, IIMC, इस तरीके से, ठीक है जी। कैन यू सजेस्ट बेस्ट बुक फॉर RC? बेस्ट बुक फॉर RC, I solved this RC 99. Yeah, I'll share the link of the book. Don't worry at all. I'll share. ठीक है। फिर उसके बाद वी वर टॉकिंग अबाउट या करंट अफेयर्स वापस मैंने करना चालू किया, इन शॉर्ट से डाउनलोड कर लिया, मिंट से मैं बहुत पढ़ती थी, यूट्यूब वीडियोस देखे बहुत सारे लोगों के जो करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं और जो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज करंट अफेयर्स जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूअर में कि आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए। दे विल नॉट आस्क यू व्हाट जस्ट हैपेंड ऑन 5th of February. No, they will ask you XYZ thing happened on 5th of February. What is your opinion? So to develop your own opinion, what you will need someone else's opinion as well, or after listening or knowing that particular thing, you need to discuss it with your friends, with your family members, so that you develop your own opinion. ठीक है जी। Then the fourth was the domain specific certificate courses. ये मैंने करना चालू कर दिया था। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे CV एडिट करना था बिफोर इट गेट फ्रीज्ड। तो फिर इसके लिए मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चालू कर दिए मार्केटिंग में कि सो दैट आई हैव एन एज। सो आई डिड दैट एंड दैट्स हाउ आई डिड माई फाइनल प्लेसमेंट प्रेपरेशन। बट कुछ नहीं, 10-15 दिन मैंने की, उसके बाद आई गॉट PPO एंड आई डिडंट हैव टू डू। कैन यू प्लीज स्टॉप दैट माय ओन? Just a second, guys. Just a second. All right. So coming to the celebration, इसके बाद लाइफ बहुत चिल हो गई, बहुत ही बढ़िया सी लाइफ हो गई थी, ठीक है मेरी। अब बहुत सारे सेलिब्रेशंस हुए जिसके कुछ वीडियोस जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो यू कैन सी ऑल दीज स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। So I'll play the first one, which is Independence Day ka celebration for you all. So that's how we ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकेंड वीडियो है, दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द ट्रिप दैट आई वेंट। एंड टर्म के बाद ना IIMs में 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलती है, वरना IIM में कोई छुट्टी नहीं होती है। एंड इन फैक्ट यू डोंट इवन हैव अ ट्रैक ऑफ संडेज ऑल्सो। संडे क्या होते हैं, सैटरडे क्या होते हैं, वीकेंड्स क्या होते हैं, पता नहीं होता, बिकॉज उस दिन भी आपकी क्लासेस होती हैं। तो जो 2 या 3 दिन की हमें छुट्टी मिली थी, आई अलॉन्ग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट हो गया था, उससे भी PPO मिल गया था। सो वॉट वी डिड वॉज वी वेंट ऑन अ ट्रिप। सो दिस
ऑल राइट, फिर आया हमारा ये दिवाली सेलिब्रेशन. दिस वाज प्री. All right. Then, so then we also had a concert in our college जहाँ पे एक नलायक बैंड आया था. And yes, there's a clip of the same. The screen is being observed. Am I visible? देखना एक मिनट मयूर. I'm visible. I'm back. All right. I'm so sorry for the interruption. So let's come to the next video that I have for you all. That is this one. तो ये बेसिकली हम लोग का ये मकर संक्रांति जो होता है ना वो सेलिब्रेट किया था हमने. एंड दिस इज जन्माष्टमी सेलिब्रेशन. देख सकते हो किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. टैंकर से पानी डाल रहे थे लोग लड़कों के ऊपर. माय गॉड, इट वाज टफ. फिर मटकी वटकी फोड़ हुई एंड इट वाज लॉट ऑफ फन. इन फैक्ट इट वाज लॉट एंड लॉट ऑफ फन. फिर उसके बाद what I was talking about initially was कि किस तरीके से my life changed and I saw a huge growth in myself. That was because I started my own YouTube channel. क्योंकि अब मेरा PPO लग चुका था and you know I had a lot of time to do and focus on myself. I started with my YouTube channel. I already did, but इसके पहले I had only 4 to 5 videos on my channel. और YouTube किया फिर अच्छे से. Then I started with freelancing as well. And the third thing that I started with was LinkedIn. Freelancing कैसे मैंने start की is that through YouTube and through LinkedIn, दोनों के combination से. अब I've always been someone कि अगर मुझे कोई दिखता है ना कोई इंसान कि this person is doing really great in life, तो I am someone who is that hungry person who wants to know कि वो इंसान वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसने ऐसा क्या किया. So there was this girl in my college. She is an IPM student, M Ayushi, third year student. She has 40K followers on LinkedIn. So she met me in mess and because she wanted to meet me because I was a YouTuber and she saw my videos before she came to campus. So she met me and she introduced herself to me and that's when I got to know कि LinkedIn पे उसके इतने सारे followers है. And फिर मैंने बोला कि why not, let's catch up again. I had a talk with her and she told me how LinkedIn can help you grow like drastically, how LinkedIn is a platform wherein it's very easy to grow और किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग चालू कर सकते हो. तो उससे मैंने बात की and then I followed all the steps that she told me, how to engage with people, how to post regularly, what you can do, what you should do, what you should not do. And that's when I started my freelancing thing, which I'm really really happy about that I did. And yeah, I guess itna bahut hai. Yeah, that's it from my end. So to this we come to the end of my journey of 2 year, wherein एक farewell वाली चीज थी which I wanted to include, but then I thought that there are a lot of videos on my channel and recently I did uploaded a video on my channel for farewell 2023 and IIM Rohtak, so that you can check out. Baki convocation is still pending and I'll share about that as well with you all. So that was a mixture of a lot of emotions, lot of ups and downs, and yeah, a lot of black and white shades in the life of a student.
सो क्या क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं? ट्रिप्स इज आस्किंग नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर इज वन ट्रैप इन नेटवर्किंग कि भाई नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट नेटवर्किंग विद इन द peers or within your college. When it comes to networking, networking among all the IIMs. So today I will not just say that I am IIM Rohtak student, but I consider myself to be an IIM student. तो जब आप ये बोलते हो IIM student, तो you should network with students across IIMs. So yeah. दीदी माई डाउट प्लीज, आप अपना डाउट वापस टाइप करेंगे डायनामाइट. So what's the main point of the session? The main point of the session was to give you all an idea about what exactly the life is inside IIM, what all things are awaiting for you if you clear CAT and get into an IIM. When can we expect IIM Rohtak result? I really do not have much idea about that, but usually result जो है हमारे टाइम पे 15th May को आया था. Last year it came in the last week of April, I guess. तो आने वाला होगा. Bye ma'am, thank you for the session. Thank you very much Ayush. Rohan is asking, I am in last year of BBA. What do you think? Shall I go for job, for experience, or shall I prepare for CAT? ये क्वेश्चन जब भी मुझे कोई पूछता है तो आई ऑलवेज से दैट यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विद योर कैट प्रेपरेशन, बिकॉज कैट क्लियर करने के बाद जो लाइफ है दैट आई हैव लिव्ड, एंड आई से दैट इट इज वर्थ इट. तो प्लीज गो अहेड एंड प्रिपेयर फॉर कैट अच्छे से, बिल्कुल. In fact, I told you that there's a batch in Unacademy which just started today, and I am mentoring that entire batch. If you wish, you can be a part of that batch, and you can use my coupon code ANP22 for discount as well. So yeah, see you there in the session if you join Unacademy. Any other questions? And if there are no questions, we can definitely end this session. Suggest books for cat. Books for cat. Okay. So there are some Arun Sharma level 1. Arun Sharma book I've solved for QA. So it's a good book for level 1. उसके बाद you can definitely refer to Oswal की कुछ books. I've used those as well. They are good. Dynamite is asking, I had IIM Bodh Gaya interview today. The interview was around 12 to 15 minutes. Is that already a rejection or the average interview time for IIM PI is around? हाँ, IIM interviews are around 15 minutes only. बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू 30 मिनट्स तक चलता है. दैट इज व्हेन यू हैव समथिंग वेरी एक्स्ट्रा अबाउट योर सेल्फ और आप उन्हें बताना चालू कर देते हो, एंड यू नो इंटरव्यूअर इज इनटू यू कि हाँ बताओ. तो उस वाले सीन में ऐसा होता है कि मतलब बहुत लंबे लंबे से इंटरव्यूज चलते हैं. अदरवाइज यूजुअली इट्स ऑफ 15-20 मिनट्स ओनली. Yes, guys, Unacademy is awesome. I am part of that batch. Oh, Ayush, you're from that class. Okay, great, great. Bhalu boy is saying that inspiring journey. Yes, thank you very much. Should I study MBA related course work in advance to prepare better in MBA quizzes? Quizzes बोले तो क्या होता है? MBA quizzes? The upper CAT percentile. I'm not allowed to disclose that until I get my degree. So once I get it, I'll disclose it. So both Suryavanshi is asking that for Quant, Raman Tiwari sir is the best. Okay जी, ठीक है. All right. So what I would say is, since I'm a part of an Unacademy and I'm in touch with the backend team, I know the educators, they're only working hard. And in fact, if you need mentoring from my end, I am a part as a mentor in the recent batch of Unacademy. And if you want to attend all those 10 sessions, please do not forget to apply my coupon code ANP22 for maximum discounts. I guess that's it for the session. Yeah, that's it. Do you the ratio of person appearing for interview and getting a call? I don't know. I'm not understanding this question, Dynamite. I guess you guys can discuss about all this among yourself later. To this, we come to the end of the session. Thank you very much for joining in, and it was great taking this session for all of you. I hope you all enjoyed. If you really did, hit the like button, comment down below about how do you like the session, and that's it. Bye bye. Take care of yourself. Good night.